حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ قرآن کریم پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 اور جن و انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 19 آپ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف مکہ معظمہ پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمان کو ماں اس لشکر عظیم کے اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20000 بکریاں ذبح فرماتے تھے اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے۔ یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد مکہ معظمہ میں مناسک ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صنعا ملک یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صنعا کا 1 مہینے کا سفر ہے اور آپ مکہ معظمہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور صنعا زوال کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر جا پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور کی یہ امنی ہدہد کی حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ اب یمنی ہدہد، بھائی تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ یافور میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد سلیمان کون ہے؟ یافور وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرما رواں اور سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز اس کی تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12000 سپہ سالار ہے اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی ہے۔ پھر اس نے یافور سے کہا تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور بھائی میں میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا۔ وہ پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یمنی ہدہد نہیں بلکہ یہاں کے ملک اور فرمانروا بلقیس کی مفصل خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے۔ یافور یمن کو دیکھنے لگا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ واقع حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ اور پھر وہ عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا
वाली है कि मैं हुदहुद को सख्त सजा दूंगा या ज़बह कर दूंगा। हुदहुद ने डरते हुए पूछा, और अल्लाह के नबी ने इस हलफ में किसी बात का इस्तिस्ना भी फरमाया है या नहीं? इकाब ने कहा, हाँ ये फरमाया कि या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। हुदहुद ने कहा, तो फिर मैं बच गया, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। फिर इकाब और हुदहुद दोनों बारगाह सुलेमानी में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोबो जलाल में फरमाया, हुदहुद को हाजिर करो। हुदहुद बेचारा दम बखुद अपनी दुम नीचे किए हुए जमीन से मलता हुआ, कांपता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके सर से पकड़ अपनी तरफ घिसेटा। उस वक्त हुदहुद ने कहा, उज़कुरू फौका बैना यदिल्लाहि, हुजूर अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी को याद कर लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर उसे छोड़ दिया और उसे माफ फरमा दिया। फिर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान की और बताया कि मैं एक बहुत बड़ी मलका को देख कर आया हूँ। खुदा ने उसे हर किस्म का सामान ऐशो इशरत दे रखा है और वो सूरज की पुजारन है। वो लहा अर्शन अजीमुन, और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। रिवायत है कि ये तख्त सोने और चांदी का बना हुआ था और बड़े बड़े कीमती जवाहरात से मुरस्सा था। बिल्किस ने एक मजबूत घर बनवाया था, जिस घर में दूसरा घर था, फिर उस घर के अंदर तीसरा घर था, फिर उस घर के अंदर चौथा घर था, फिर उसी तरह फिर उसमें पांचवा और पांचवें में छठा और छठे में सातवां घर था। उस सातवें घर में वो तख्त मुख्फिल था और साथ ही गिलाफ उस तख्त को चढ़ा रखे थे। उस तख्त के 4 अदद पाए थे। एक पाया सुर्ख याकूत का, दूसरा जर्द याकूत का, तीसरा जर्द ज़मरद का और चौथा सफेद मोती का था। ये तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा था। बिल्किस 7वें घर के अंदर रखे हुए इस तख्ते अजीम पर बैठा करते थे। हर घर के बाहर सख्त पहरा था और बिल्किस तक पहुंचना एक दुश्वार अम्र था। हुदहुद ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्किस की बात सुनाई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक खत ले जाओ और बिल्किस को पहुंचाओ। चुनांचे आपने एक खत लिखा और उसमें मेरे मामला में बड़ाई जाहिर ना करो और मुसलमान बनकर मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। और इस खत पर शाही महर शिफ्त करके हुदहुद को दे दिया। हुदहुद गया और सातों किलों के पहरों से बेनियाज होकर नबी का ये चिट्ठी रसा रोशन दानों में से गुजरता हुआ बिल्किस तक जा पहुंचा। बिल्किस उस वक्त सो रही थी। हुदहुद वो खत बिल्किस के सीने पर रखकर बाहर निकल आया। बिल्किस जब उठी तो ये खत पाकर घबराई और आया ने सल्तनत से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। वो बोले कि आप डरती क्यों हैं? हम जोर वाले और लड़ने में माहिर है। सुलेमान अगर लड़ना चाहता है तो लड़े, हम शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकते। आइंदा जो आपकी मर्जी। बिल्किस ने कहा कि जंग अच्छी चीज नहीं। बादशाह जब किसी शहर में अपने जोरों कुव्वत से दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं सुलेमान की तरफ एक तोहफा भेजूं और फिर देखूं कि सुलेमान उसे कबूल करते हैं या नहीं। अगर वो बादशाह है तो तोहफा कबूल कर लेंगे और अगर नबी है तो मेरा तोहफा कबूल नहीं करेंगे। बजुज उसके ये उनके दीन का इत्तिबा किया जाए। चुनांचे बिल्किस ने 500 गुलाम 500 बांध दिया। बेहतरीन रेशमी लिबास और जेवरात के साथ आरास्ता करके उन्हें ऐसे घोड़ों पर बिठाया जिनकी काठियां सोने की और लगामें जवाहरात से मुरस्सा थी। वो 1000 सोने और चांदी की ईंटें और 1
ताज जो जड़े बड़े बड़े कीमती मोतियों से मुज़य्यन था, वगैरह वगैरह। माँ एक खत के अपने कासिद के साथ रवाना किए। हुदहुद देख कर चल दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा सुना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिनी लश्कर को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनाकर 6 मील तक उन्हीं ईंटों की सड़क बना दी जाए और सड़क के इधर उधर सोने और चांदी की बुलंद दीवारें खड़ी कर दी जाए और समंदर के जो खूबसूरत जानवर है उसी तरह खुश्की में भी जो खूबसूरत जानवर है वो सब हाजिर किया जाए। चुनांचे आपके हुक्म की तामील फौरन की गई। 6 मील सोने चांदी की सड़क बन गई और उस सड़क के दोनों तरफ सोने और चांदी की दीवारें भी बन गई और खुश्की और तरीके खूबसूरत जानवर भी हाजिर कर दिए गए। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त की दाएं जानिब 4000 सोने की कुर्सियां और बाएं तरफ भी 4000 सोने की कुर्सियां रखवा दी और उन पर अपने मुकर्रबीन और खास को बिठाया और अपने जिनी लश्कर और इंसानी लश्कर को दूर दूर तक सफा बसफ खड़ा कर दिया और वहशी जानवरों और परिंदों और चौपायों को भी सब बसफ खड़ा कर दिया। इस किस्म का शाही दबदबा और जलाल और इस शान और शौकत की हुकूमत चश्मे फलक ने कभी देखी ही ना थी। बिल्किस का कासिद अपने ज़ोम में बड़ा कीमती तोहफा ला रहा था, मगर जब उसने सोने चांदी की बनी हुई सड़क पर कदम रखा और इर्द गिर्द सोने चांदी की दीवारें देखी और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाहो इज्जत और शानो शौकत के नजारे देखे तो उसका दिल धक धक करने लगा और शर्म के मारे पानी पानी हो गया और सोचने लगा कि मैं ये बिल्किस का तोहफा किस मुंह से सुलेमान की खिदमत में पेश करूं। बहरहाल जब वो बारगाह सुलेमानी में पहुंचा और हजरत ने फरमाया, क्या तुम लोग माले दुनिया से मेरी मदद करना चाहते हो? तुम लोग अहले मुफाखरत हो, दुनिया पर फख्र करते हो, एक दूसरे के तोहफा व हदिया पर खुश होते हो। मुझे न दुनिया से खुशी होती है और ना उसकी हाजत है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और इतना कुछ दिया है, लिहाजा ऐ बिल्किस के कासिद पलट जा और ये अपना तोहफा ले जाओ अपने साथ ही और जाकर कह दो कि अगर वो मुसलमान होकर हमारे हुजूर हाजिर नहीं होती तो हम उस पर लश्कर लाएंगे और उसके मुकाबला की उसे ताकत ना होगी और हम उसे जलील करके शहर से निकाल देंगे। बिल्किस का कासिद ये पैगाम लेकर वापस पलटा और बिल्किस से सारा किस्सा तफसील से कहा। बिल्किस ने गौर से सुना और बोली कि बेशक वो नबी है, हम उससे मुकाबला करना हमारे बस का काम नहीं। फिर उसने आयाने सल्तनत से मशवरा तलब करने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में खुद हाजिर होने का इरादा कर लिया। हुदहुद ये सारी रिपोर्ट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ये ऐलान फरमाया, कौन है जो बिल्किस के यहाँ पहुंचने से पहले पहले उसका तख्त यहाँ ले आए? अफरीत नामी एक जिन उठा और बोला, अना अतीका बिही कबला अन तकूमा मिन मकामिका, आपके इजलास बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम उससे भी ज्यादा जल्दी मंगवाना चाहते हैं। तो फिर इस आलम ने किताब उठा और बोला, अना आतीका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफ का, मैं एक पल मारने से भी पहले ले आऊंगा। ये कहा और पल की पल में वो तख्त भी ले आया और सुलेमान ने देखा तो तख्त सामने रखा था। फिर बिल्किस भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और हजरत की शान व शौकत व सदाकत व नबूवत का नजारा करके मुसलमान हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार और बिल्किस के तख्त के मकाम का दरबानी फासला 2 महीना की राह का था और तूलो अर्ज उसका
पढ़ चुके कि 30 गज ऊंचा, 40 गज चौड़ा, 80 गज लंबा, इतनी तवील मुसाफत और इतने वजनदार होने और इतने महफूज मकाम में होने के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक सिपाही उसे पल भर में ले आया, तो फिर जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी आका व मौला हुजूर सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम के औलियाए उम्मत है, वो क्यों ना दरो दराज की मुसाफत से किसी मजलूम की एयानत व हिमायत को नहीं पहुंच सकते। वो आलम किताब वो तख्त लाने के लिए भरे दरबार से बिल्कीस के महल में गया और वहां से तख्त उठाकर वापस आया। फिर इस अरसा में वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से गायब भी नहीं हुआ और मकाम तख्त तक भी पहुंच गया। मालूम हुआ कि अल्लाह वालों में ये ताकत है कि वो एक ही वक्त में मुतअद्दिद जगह हाजिर हो सकते हैं, और ये ताकत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सिपाही की है। फिर जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम है, उनका एक वक्त में मुतअद्दिद जगह तशरीफ फरमा होना ये क्यों नहीं मुमकिन हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस सिपाही ने 2 महीने की राह को पल भर में तय कर लिया और पल भर में चला भी गया और आ भी गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का शबे मेराज पल भर में अर्श पर तशरीफ ले जाना, वापस तशरीफ ले आना क्यों मुमकिन नहीं। तख्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम को माँ एक लश्करे अजीम के हवा उठा लेती थी। ये नबी का तसर्रुफ़ो इख्तियार, और जो अंबिया को अपनी मिस्ल बशर कहते हैं, उनमें से कोई साहब जरा अपनी बीवी समेत ही किसी छत से हवा में छलांग लगाकर दिखाएं ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हरम शरीफ में पहुंच करके हर रोज 5000 ऊंट, 5000 गाय और 20,000 बकरियां ज़बह फरमाते रहे। मगर एक फिरका आजकल ऐसा भी है जो अय्यामे हज में एक बकरी तक की कुर्बानी को फजूल कहता है और मुसलमानों को इस शरई अम्र से रोकता है। जिन्हों इंस वहशो तुयूर, खुशकी व तरीके हैवानात और दिगर अल्लाह की जबरदस्त मखलूक भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थी। और आज जो लोग अंबिया को अपनी मिस्ल बशर कहते हैं, उनके घर की तरफ नजर दौड़ाइए तो उनके घर वाले भी उनके ताबे नहीं है।